Hi guys, today I'll be starting up with your this thing unit 5, and your unit 5 talks about the dividend theories. All right, the way we have started about the income theories and capital structure, net income approach, net operating income approach. Right, so there are dividend theories also, whether dividend is relevant, irrelevant. So all these theories will be studying in this you can say this unit. Okay, I'll be sharing the ebook as well as various topics which are available on the internet as well, because आप लोगों को अभी बुक्स की एक्सेस नहीं होगी, राइट तो ई बुक्स के तौर पे आई विल बी शेयरिंग विद यू. उनमें से आप पढ़ के अपने असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं, उनमें से आप पढ़ के अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं. ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट है व्हाट असाइनमेंट्स आई हैव गिवन, व्हाट आई हैव गिवन. ईशा हैज सबमिटेड द असाइनमेंट फ्रॉम योर क्लास. अगर आप लोग सारी पीपीटीज और सारे वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने कौन सा असाइनमेंट दिया है. ठीक है, इफ स्टिल यू डोंट हैव इट देन contact Isha from your class. All right, Isha Sharma, and this is particularly for section A students. Okay, so let's begin with the topic, dividend theories. Okay, there are mainly three categories of dividend theories: dividend relevance theory, dividend irrelevance theories, dividend and uncertainty. All right, okay. So dividend relevance theories जो हैं, these are the theories whose propagators argue, whose authors they argue that dividend policy of the firm affects the value of the firm. जैसे हमने net income approach में क्या पढ़ा था कि भाई क्या बोलते हैं, अगर आप डेट को इन्वॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. तो ऐसे ही ये टॉपिक जो है ये डिविडेंड से रिलेट करता है. ठीक है, कि भाई डिविडेंड जो है वो आपकी फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करता है. तो इसमें भी आपके दो थियोरिस्ट हैं, वॉल्टर जेम्स ई वॉल्टर एंड मायरन गॉर्डन. तो इसमें दो मॉडल्स हैं आपके रेलेवेंट थ्योरीज में. फर्स्ट इज वॉल्टर्स मॉडल, सेकंड इज गॉर्डन्स मॉडल. ओके, विल बी डिस्कसिंग दीज टू ओनली टुडे. वॉल्टर मॉडल में जो है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न आर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के. ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है. जो अजम्पशंस आपकी हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये अजम्पशंस एक्सप्लेन करना जरूरी होता है. ठीक है, पहला इसमें है इंटरनल फाइनेंसिंग. द फर्म इट फाइनेंसेस ऑल द इन्वेस्टमेंट्स थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, डेट और न्यू इक्विटी इज नॉट इशूड. दिस इज एन अजम्पशन. ठीक है, constant return and cost of capital, the firm's rate of return R and its cost of capital are constant. ठीक है, 100% payout or retention, all the earnings are either distributed as dividends or reinvested. मतलब आप या तो सारे उसको dividends को distribute कर रहे हो या सारों को reinvest कर रहे हो 100% को. ठीक है, constant EPS and DPS. EPS is earnings per share, DPS is dividend per share. ठीक है, so the value of EPS and DPS may be changed in the model to determine the results, but are assumed to remain unchanged in a determining of the given value. ठीक है, infinite time, the firm has a very long or infinite life. ये इसके assumptions हैं, जिन assumptions पे ये मॉडल को उसने वॉल्टर ने जस्टिफाई करा है. ठीक है, इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है MPS. ठीक है, तो MPS is your market price of a share, market price per share. ठीक है, this is as follows: price is equal to DPS upon K. DPS is dividend per share upon K is firm's average firm's cost of capital plus R into EPS minus DPS divided by K, the whole divided by K. ठीक है, इसके बेसिस पे आपके फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. ये इसका मेजर फॉर्मूला वॉल्टर का यूज हो रहा है इस केस में. ठीक है, the market value is determined as the present value of two sources of income, present value of constant streams of dividend and present value of infinite streams of capital gains. ठीक है, इसका 10 फॉर्मूला क्या बन जाता है? P is equal to DPS plus R by K ब्रैकेट में EPS minus DPS upon K. इसका एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके, ठीक है, I'll send you in the next video lecture. Okay. ओके, इसमें तीन तरीके की फर्म्स का आपको सिनेरियो गिवन है. पहला है ग्रोथ फर्म, दूसरा नॉर्मल फर्म, ठीक है, तीसरा है आपका डिक्लाइनिंग फर्म. ठीक है, तो पहला ग्रोथ फर्म में है देयर आर सेवरल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. उसमें आपका जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ा होता है. ठीक है, द फर्म कैन री इन्वेस्ट द अर्निंग्स एट अ हायर रेट
which can be maximized and they will maximize the value of the share if they reinvest. मतलब ग्रोथ फर्म्स में क्या है कि R जो है वो K से बड़ा है, तो ठीक है, तो वो क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे दे विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर अगर वो री इन्वेस्ट पूरा होता है। तो ग्रोथ फर्म्स में इट इज अज्यूम्ड कि सारा डिविडेंड जो है वो री इन्वेस्ट किया जाता है। नॉर्मल फर्म में देयर आंट एनी इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल, इतने ज्यादा नहीं होते इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जो आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न दे। तो इस केस में आर जो है वो आपका रेट ऑफ रिटर्न विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। दस द डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। ओके, तीसरा वाला है डिक्लाइनिंग फर्म। इस केस में कोई भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होता है, ठीक है। तो फर्म विल देयरफॉर मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू इफ इट पेज आउट ऑल द अर्निंग्स, ठीक है। जब कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कहीं करने के लिए, तो वो आपका डिविडेंड आपको पूरा पे कर देगी, तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करके कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्रिटिसिज्म्स क्या क्या है, इसके मतलब क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि इसको, इस मॉडल को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया। ये मॉडल रिज्यूम करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ द फर्म आर फाइनेंस्ड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स अलोन। तो बेसिकली जो इसके असम्पशंस होते हैं ना, वही हर मॉडल के क्रिटिसिज्म बन जाते हैं, ठीक है। कुछ अगर असम्पशंस हम लेंगे नहीं तो किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम असम्पशन ले रहे हैं तो दैट मीन्स वो चीज कांस्टेंट नहीं है, राइट, तो वही उसके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि ऊपर असम्पशन था कि भाई सारा जो है रीफाइनेंसिंग जो हो रहा है वो रिटेन्ड अर्निंग से हो रहा है, तो यहाँ पे वही बन गया आपका पहला क्रिटिसिज्म, ठीक है। दिस मॉडल अज्यूम्स अ कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न। भाई कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न कभी नहीं होता मार्केट में, ठीक है। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज डिसरिगार्ड्स द फर्म रिस्क। मतलब कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हो सकता है, फर्म हमेशा एक रिस्क जोन में होती है, ठीक है, और रिस्क जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से डिस्काउंट रेट भी चेंज होता रहता है उसी प्रोपोर्शन में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी वॉल्टर मॉडल के बारे में डिस्कस करा है। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू, वॉल्टर और गॉर्डन दोनों का, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गॉर्डन मॉडल, ठीक है। असम्पशंस क्या है इसके, फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, कोई भी डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज देयर, कांस्टेंट रिटर्न्स है, ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। भाई ये असम्पशंस जो हैं यही क्रिटिसिज्म्स होते हैं किसी भी मॉडल के, ठीक है। इसका भी जो है इसमें बल्कि ज्यादा है आपके, ठीक है, ये इसके सारे वो हैं असम्पशंस, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो व्हेन द अर्निंग्स आर रिटेन्ड। मतलब ये बोलता है कि अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो उनको रिटेन करें अपने पास, अर्निंग्स को एज डिविडेंड्स उन्हें ना पे करें, तो जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। इस केस में द डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू द पे आउट रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई अर्निंग्स, दैट इज ईपीएस इंटू 1 माइनस बी। बी जो है वो आपका यहाँ पे पे आउट रेशियो है, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ द फर्म को निकालने के लिए आपका जो मॉडल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है P0 इज इक्वल टू ईपीएस इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस जी, ठीक है। वेयर 1 माइनस बी जो है वो आपका रिटेंशन रेशियो ऑफ द फर्म है, गिवन बी एज द पे आउट रेशियो। मतलब पे आउट रेशियो, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का डिविडेंड है, ठीक है, सो उसमें कंपनी ने 20% पे कर दिया, तो पे आउट रेशियो हो गया 20%, ठीक है। तो बी आपका है 20% और 1 माइनस बी हम कर देंगे 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80% आपका रिटेंशन रेशियो आ जाएगा। तो 80% मतलब 80 रुपीज कंपनी ने अपने पास रखे री इन्वेस्ट करने के लिए और 20 रुपीज आज डिविडेंड पे कर दिए, ठीक है। जी जो वह है आपका वो कंपनी का ग्रोथ रेट है, जिसको हम डिटरमिन करते हैं बी आर, बी इंटू आर है, और जी जो है इज ऑलवेज लेस देन के। मतलब आपका ग्रोथ रेट जो है कंपनी का वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा, ठीक है, ठीक है। इसके भी कंक्लूजन जो है वो सिमिलर हैं वॉल्टर मॉडल जैसे ही, ठीक है। इसमें पहला क्या वो है कंक्लूजन, द मार्केट वैल्यू मतलब जो प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस विद रिटेंशन रेशियो बी for growth opportunity firms when R is greater than K, ठीक है। Second case, the market value of the share increases with payout ratio 1 for declining firms with R less than K, ठीक है। And तीसरा है the market value is not affected by dividend policy where R is equal to K, ठीक है।
तो अभी आज के लिए हमने ये दो मॉडल्स डिस्कस करें, ठीक है। इसको पहले थियोरेटिकल पूरा डिस्कस करने के बाद में इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो, क्योंकि अगर पेपर में नहीं आते होंगे, ठीक है, तो हमें डिस्कस करने की उतनी डिटेल में जरूरत नहीं है। ऑलराइट, okay, that's it for today. Kindly go through this video lecture, ठीक है, and get me for any doubts if you are having. Okay.